Dear students, let us now talk about the other theories of evolution. Till now we have discussed about the two major theories of evolution. हमने evolution के theories के topic के बारे में बात कर रहे हैं. तो इस टॉपिक में हमने ऑलरेडी दो थियरीज देख ली हैं ऑलरेडी, जो है लेमार्किज्म जिसे दिया गया था लेमार्क ने, और दूसरी थियरी है डार्विनिज्म विच वाज गिवन बाय डार्विन, which was also known as theory of natural selection. Now, the third theory that was given by another researcher, and this theory has been given, both Lamarckism is being explained in few lines in your textbook, even Darwinism is being explained in few lines in your textbook. The third theory, that is the mutation theory given by Hugo de Vries. So first we mentioned that is the third theory given by Hugo de Vries, which is the mutation theory given by Hugo de Vries. Now according to Darwin, जो genetic variations हैं, they are present in, that is genetic variations continue in all the organisms from generation to generation. But formation of a new species, according to Darwin, formation of a new species is due to the gradual variations that take place in generation to generation. Whereas according to Hugo de Vries, the speciation or the formation of a new species occurs just because of a single mutation, a single step change, which is known as mutation. This mutation is responsible for formation of a new species. मतलब डार्विन ने ऐसा कहा था कि जो भी वेरिएशंस, मतलब जब भी नया स्पीसीज बनता है तो वो किस वजह से बनता है, वेरिएशंस की वजह से, जो कंटिन्यू होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस एक जनरेशन में आते हैं, उसकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होगी तो अगेन देयर विल बी माइनर वेरिएशन, नेक्स्ट जनरेशन विल अगेन हैव फ्यू माइनर वेरिएशंस, and slowly when these variations continue for a long period of time, they result into formation of a new species. That was according to Darwin. But according to Hugo de Vries, the species formation is due to a single large step change, which is known as the process of mutation. So here we mention that according to Darwin, the new species formation occurs due to continuous variations in each generation. Whereas according to Hugo de Vries, variations are discontinuous, and these discontinuous variations are simply what? Mutations that result into formation of a new species. राइट? तो डार्विन ने क्या कहा था कि वेरिएशंस जो होते हैं वो बहुत ही ग्रेजुअल होते हैं, स्लो होते हैं. ये इतने स्लो होते हैं कि शायद नोटिस भी ना हो. राइट? वेरिएशंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, स्लो होते हैं, और मे बी ये वेरिएशंस ऐसा भी हो सकता है कि कोई जनरेशन में नोटिस भी ना हो. और ऐसे वेरिएशंस जब बहुत सारी जनरेशन तक चलते आते हैं, दे गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज. जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जो थे, इवन बिफोर मिलियंस, मतलब सेवरल इयर्स अगो व्हेन ह्यूमंस एग्जिस्टेड, उन्हें हम अलग नाम से बुलाते थे. दैट स्पीसीज वाज होमो इरेक्टस. लेटर ऑन ये होमो इरेक्टस में चेंजेस आते गए होंगे, और एक टाइम ऐसा आ गया होगा कि इसमें इतने सारे वेरिएशंस देखने को मिले दैट वो पेरेंटल से एकदम ही अलग हो गए, और फिर नाम दिया गया होमो सेपियंस सेपियंस.
तो ये क्या हुआ होगा that there will be minor variations which would have been continued for several generations, and when this minor variations continue for a long time from one generation to another, ultimately they give rise to a new species. जबकि ह्यूगो डी व्रीज जो है वो ऐसा कहते हैं कि एक ही लार्ज स्टेप में कोई म्यूटेशन हो जाने की वजह से नई स्पीसीज जो है वो डेवलप होती है। तो नई स्पीसीज जो है उसके लिए बहुत सारी जनरेशंस की जरूरत नहीं है, एक ही जनरेशन में वेरिएशन आने से नए स्पीसीज बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज। However, there are some evidences which prove that his work is correct, but it cannot be considered completely correct. तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं that सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज he was working on a plant which was Oenothera lamarckiana. The name of the plant was Oenothera lamarckiana, which is also known as simply evening primrose. Which is known as evening primrose. तो ये जो प्लांट था उस पे उसने कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। तो in this plant what did he do is that he took the plant species, right? नॉर्मल जो प्लांट है, नॉर्मल प्लांट स्पीसीज इवनिंग प्रिमरोज उसने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके फिर उसने क्या किया, इट अलाउड इट टू सेल्फ पॉलिनेट। उसने सिंपली क्या किया, यहाँ पे लेमार्कियाना प्लांट लिया, दैट इज इवनिंग प्रिमरोज प्लांट लिया। द प्लांट वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। सेल्फ पॉलिनेट होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद एट द एंड वी विल गेट द रिजल्ट, दैट इज द सीड्स। द सीड्स वर सोन इनटू द ग्राउंड and then there were two generations that were obtained. Majority of plants were with very few variations. मतलब हम कह सकते हैं कि majority of plant कैसे थे, just like a normal plant, जो parental plant था उसी की तरह दिख रहे थे, but there were few plants which were, that is minor, they were having more वेरिएशंस। देखिए क्या किया है उसने, नॉर्मल प्लांट ले लिया इवनिंग प्रिमरोज। ये प्लांट लेने के बाद उस प्लांट को क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन करने पे एंड पे हमें सीड्स मिलेंगे। सीड्स को क्या किया, ग्राउंड में सो कर दिया। सो किया तो दो तरह के प्लांट्स ग्रो हुए। एक मेजॉरिटी प्लांट्स ऐसे थे, जैसे कि 10 प्लांट्स उसने एक्सपेरिमेंट में लिए हो तो 8 प्लांट्स ऐसे थे जो पैरेंटल प्लांट्स की तरह ही दिखते थे और उन्हीं की तरह फंक्शन, मतलब दिखने में, अपीयरेंस में, हर तरह वो कैसे थे, पैरेंटल की तरह। पर हमें पता है कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहता, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। इसीलिए वी हैव रिटन दैट देयर वर हार्डली फ्यू वेरिएशंस इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, बट देयर वर फ्यू सच प्लांट्स, जैसे कि 10 में से 2 ऐसे थे जिनमें क्या था, ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिले, बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिले। अगेन व्हाट डिड ही डू, अगेन ही टुक दोस वेरिएटेड प्लांट्स जो अलग अलग थे, वो प्लांट्स उसने सिलेक्ट किए। अगेन ही सेल्फ पॉलिनेटेड देम। अगेन आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ही गॉट द सीड्स, अगेन द सीड्स वर सोन, again he got a similar results that majority were having few variations just like the parental, and there were few plants with more variations। क्या कह रहे हैं हम वापस, कि उसने जब ये वापस जो मोर वेरिएशन वाले प्लांट्स थे उन्हें सेल्फ पॉलिनेट किया तो उसमें भी उसे वैसा रिजल्ट मिला कि मेजॉरिटी जो है उनमें बहुत ही कम वेरिएशन थे, मतलब वो पैरेंटल की तरह ही दिख रहे थे। एंड देयर वर फ्यू प्लांट्स व्हिच वर हैविंग सम अनयूजुअल वेरिएशंस। दीज वेरिएशंस वर in size of the plant, color of the flower, and all these variations like size अलग मिली उसे, मतलब ये जो हम few plants की बात करें, मैक्सिमम प्लांट सिमिलर ही मिले,
पर थोड़े बहुत प्लांट्स कैसे मिले, अलग मिले, नए, उनकी साइज अलग थी, उनका फ्लावर कलर अलग था। तो ये आप देख सकते हो कि एक ही जनरेशन में उसे क्या मिल रहा है, अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ द प्लांट, डिफरेंट कलर्स ऑफ द फ्लावर। तो ये हम क्या बता रहे हैं कि एक ही जनरेशन में उसे वेरिएशन मिल गया, एंड दिस एक ही जनरेशन में ये जो वेरिएशन मिला उसे उसने क्या कहा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब म्यूटेशन, राइट। कंटिन्यूअस वेरिएशंस किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही कम वेरिएशंस है, अगेन ये सेल्फ पॉलिनेट होंगे तो वापस बहुत ही कम वेरिएशंस मिलेंगे, वैसे वैसे चलता जाएगा तो उसे हम कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं, जो एक्सप्लेन किया था किसने, डार्विन ने। पर ये क्या है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, मतलब यहाँ पे हमें जो प्लांट मिले थे, मतलब इन्हें द रिसर्चर ह्यूगो डी व्रीज को जो प्लांट्स मिले थे उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस वाले प्लांट थे, अगेन उसे वापस दूसरी बार किया तो वापस ज्यादा वेरिएशंस वाले प्लांट मिल रहे, विच शोज दैट वेरिएशंस जो है वो कैसे हो गए, डिसकंटिन्यूअस, मतलब एक से दूसरी जनरेशन पे जाते ही साइज, कलर, शेप सब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये जो चेंजेस थे, दीज चेंजेस वर ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, राइट। ये वेरिएशंस क्यों थे, क्योंकि क्या चेंज हो रहा था, क्रोमोसोम नंबर। बट द थिंग इज दैट क्रोमोसोम नंबर वेरी होना प्लांट्स में बहुत ही कॉमन होता है, प्लांट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो बहुत इजीली वेरी हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो नॉर्मल लेमार्कियाना प्लांट है उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 14, क्रोमोसोम नंबर इज 14, मैंने चैप्टर 14 नहीं लिखा है, क्रोमोसोम नंबर इज 14, राइट। और यहाँ पे जब उसे अलग अलग वेराइटीज मिली तो ये हर एक वेराइटी में चेंज क्या हो रहा था, क्रोमोसोम नंबर वाज वेरिंग, एंड ड्यू टू वेरिंग क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स वेर ऑब्टेन्ड इन द प्लांट। क्रोमोसोम नंबर बदलने पे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो रहे थे। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट बाय व्हिच ही हैज proved that mutations are responsible for formation of a new species, क्योंकि ये वेरी होने वाले प्लांट को अलग नाम दिया गया था, that was Ornithera gregis, ऐसे अलग ही नाम दिया था क्योंकि उसे Ornithera lamarckiana नहीं कहा गया, ये Ornithera lamarckiana होगा, बट जिसमें वेरिएशंस आया था it was known as Ornithera gregis, so the name of the plant itself, that is the species itself, was a new one. So this one large step mutation is known as saltation. If you read your textbook you will come across this point, आपकी टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट दिया गया है that one large step mutation, one step mutation मतलब क्या, एक ही जनरेशन में फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ, सीड बना, सो किया, एंड यू गॉट अ डिफरेंट प्लांट। तो एक ही स्टेप में वेरिएशन इतना बड़ा आ गया है कि उसे हम पूरा ही अलग स्पीसीज कह रहे हैं, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज साल्टेशन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज। इसके एविडेंसेस में ऐसा है कि देयर वाज इन यूएसए देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ अ स्पीसीज ऑफ द शीप। मतलब क्या हुआ था कि पैरेंटल मतलब एक फीमेल शीप एंड अ मेल शीप वाज अलाउड टू मेट, उनके फर्टिलाइजेशन से एक हाइब्रिड शीप डेवलप हुई जिसको कहते हैं एंकन शीप। मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा एग्जांपल मेंशन कर रही हूँ, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट, ठीक है। एंकन शीप जो थी वो एंकन शीप अनयूजुअली शॉर्ट लेग्स वाली शीप थी। दोनों पैरेंटल शीप्स जो थे वो नॉर्मल थे, ओके। तो पैरेंटल शीप्स वेर नॉर्मल, मदर वाज अ नॉर्मल, फादर वाज अ नॉर्मल, पर उनसे जो ऑफस्प्रिंग बना वो ऑफस्प्रिंग को कहा गया है एंकन शीप। और ये ऑफस्प्रिंग के ऐसा क्यों हम म्यूटेशन बोल रहे हैं, क्योंकि एंकन शीप के जो लेग्स थे वो बहुत ही छोटे थे कंपेयर टू द नॉर्मल पैरेंटल शीप्स। तो ये ऐसा माना जाता है कि जब पैरेंटल स्पीसीज नॉर्मल है तो इन जस्ट वन जनरेशन हाउ कैन यू गेट अ शीप विद अ वेरी स्मॉल लेग्स। So that is an unusual variation, a discontinuous variation, or we can say it as a mutation that has occurred in the sheep and that has resulted into formation of the Ankon sheep with small legs. So that is considered as an evidence which supports the Hugo de Vries
म्यूटेशन थियरी, मतलब जैसे डार्विन को सपोर्ट करने वाले एग्जांपल्स हैं, लेमार्क को सपोर्ट करते हैं, वैसे एंटन शीप इज वन सच एग्जांपल इन मैसाचुसेट्स, दैट इज इन यूएसए. देयर इज this example that a different type of sheep has directly originated from the parents, but in nature these mutations are very very rare, so we cannot consider Hugo de Vries concept exactly correct, क्योंकि नेचर में क्या होता है कि ये जो म्यूटेशन है, इतना सडन म्यूटेशन बहुत ही रेयर होता है. जैसे कि ह्यूमंस में बात करते हैं तो सारे ही मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस जो बन रहे हैं, जो नए बर्थ हो रहे हैं, वो 95% नॉर्मल होते हैं, पर 5% ऐसे अनयूजुअल भी होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, या तो कोई लिम्स नहीं होता, या तो हेड पार्ट इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड. तो ऐसे चेंजेस आने वाले चांसेस कितने हैं? बहुत ही कम. So mutation is actually a rare event, though according to Hugo de Vries, the reason for formation of a new species is mutation. Next we talk about the last theory that supports evolution, which is the neo-Darwinism or the synthetic theory for evolution. The synthetic theory is considered to be the most appropriate theory which explains that the reasons or the theory of the evolution. So the next theory which explains the evolution, that is, as we are discussing theories of evolution, the first theory we discussed was the Lamarckism, the second theory was Darwinism, the third theory which was discussed was the Hugo de Vries mutation theory, according to which the mutation is responsible for saltation, that is generation of a new species. And what is mutation? It is a saltation, a change or a large step change which occurs just in one generation. That was known as a mutation. And mutations gives rise to the new species. So that was being discussed in the previous lecture, that it has been said by whom? It has been said by Hugo de Vries. Now we talk about the last theory, which is the most acceptable theory for the evolution. And this theory is the fourth theory, which is known as neo-Darwinism, or it is also known as the synthetic theory or the modern theory for evolution. Okay, so neo-Darwinism, or another word is modern theory, or the another word is synthetic theory for evolution. So according to this theory, there are only two postulates that are responsible for evolution. Okay, that is, the two postulates will be, the first one is known as genetic variability, and the second postulate responsible is natural selection. So whatever aspects were being explained by Darwin, they were also accepted in this theory, but it was slightly modified than Darwin's theory, so it was known as neo-Darwinism. सिंथेटिक थियरी जो भी एक्सप्लेन कर रही है वो बहुत ही ज्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द थियरीज. बाकी की जो थियरीज दी हैं उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सही जो थियरी है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो थियरी है, वो है नियो-डार्विनिज्म थियरी. तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इवोल्यूशन के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है. सबसे पहली चीज जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, and second thing which plays a most important role is the natural selection. So first we talk about genetic variability. Okay, so first I am mentioning genetic variability. Genetic variability मतलब क्या? Variations. हमें पता है that in every population has variations within the species. Every population has variations. Okay, variations हम क्यों बात कर रहे हैं बार बार? देखिए, आप हैं, right? You are a copy of your parents, right? You have derived the genetic material directly from your parents. Still, you are not exactly similar to your parents.
You are having your younger brother or maybe elder sister or anyone. You have genetic similarity. There are many genes which are going to be similar in both of you. But still there is something which is going to vary in you, something which is going to be different in you. तो ये जो चेंजेस हैं उन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं. ये जो आप में चेंजेस हैं कंपेयर टू योर ब्रदर एंड सिस्टर, ये जो चेंजेस हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं. पर वेरिएशंस दो तरह के होते हैं. कई वेरिएशंस यूजफुल होते हैं और कई वेरिएशंस यूजफुल नहीं होते. कई वेरिएशंस ऐसे होते हैं which enables the organisms to survive in the environment. And some of the variations are just change in the structure of slightly different color of eyes. That is not a variation which is very serious one. Are you getting it? So there are some of the variations which are so much important that they help the organism to get adapted to the newer environment. And therefore variations are very important. हमने एक और चीज की बात की कि variations दो तरह के होते हैं. Continuous भी होते हैं और discontinuous भी होते हैं. कंटिन्यूस वेरिएशंस मतलब जो एक से दूसरे जनरेशन में चलते रहते हैं. जैसे कि आपके पेरेंट्स थोड़े वेरिएशन होंगे उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, आप आए हो तो आप में थोड़े और वेरिएशंस होंगे, आपकी नेक्स्ट प्रोजेनी होगी तो इट विल बी स्लाइटली मोर डिफरेंट देन यू. सो दैट इज व्हाट कंटिन्यूअस एंड स्लो एंड ग्रेजुअल वेरिएशंस. ओके, ग्रेजुअल वेरिएशंस में नई स्पीसीज बनते बनते बहुत 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 जनरेशंस चली जाएंगी, तब जाके कोई नई स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी. डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस मतलब म्यूटेशंस जो रैंडमली एब्रप्टली हो गए हैं एंड दे इन वन जनरेशन इटसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ न्यू स्पीसीज. तो ऐसा हो सकता है दैट वेरिएशंस कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, वेरिएशंस यूजफुल या तो फिर लेस यूजफुल. तो वेरिएशंस जो है वो इनएविटेबल है इन एवरी पॉपुलेशन, नॉट जस्ट ह्यूमंस. वेरिएशंस हर एक ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट होते हैं. तो ये वेरिएशंस होते क्यों हैं? Why these variations are happening? So there are few reasons for variation to occur. Variations क्यों होते हैं? उनके reasons हैं. The first reason why variation is going to occur is what? The first reason is the mutation. The first reason, right? Reasons for variations की हम बात कर रहे हैं. हम genetic variability की बात कर रहे हैं कि हम सब में genetic variability है. तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी हम सब में क्यों है? तो पहला रीजन क्या है? द फर्स्ट रीजन इज म्यूटेशन. ओके, तो म्यूटेशन की जब बात कर रहे हैं तो म्यूटेशन मतलब अ चेंज दैट कैन बी आइदर इन द क्रोमोसोम और दैट चेंज कैन बी इन आइदर अ जीन. सो दिस म्यूटेशंस कैन बी आइदर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और जीन म्यूटेशंस. क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हो सकते हैं या तो फिर जीन म्यूटेशंस हो सकते हैं. मतलब म्यूटेशंस जो है वो कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम में भी हो सकता है या तो एक जीन मतलब स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए या तो फिर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए, इसमें भी वेरिएशन हो सकते हैं. क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जब हम बोल रहे हैं तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कैसे हो सकते हैं? तो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कैन बी चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इट कैन बी इवन न्यूमेरिक म्यूटेशंस मतलब क्रोमोसोम के नंबर में, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन होना. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मतलब क्या? तो कई बार क्या होता है कि कोई आर्म जो होता है क्रोमोसोम, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 5 है, उसका कोई आर्म है तो वो डिलीट हो गया है, रिमूव हो गया है. कोई छोटा सा सेगमेंट है फ्रॉम अ क्रोमोसोम दैट हैज बीन एडेड अप और दैट हैज बीन रिमूव्ड, राइट. इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे. यू हैव अ होल टॉपिक ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस दैट इज इन चैप्टर नंबर 5. तो आप जेनेटिक्स में काफी डिटेल में पढ़ने ही वाले हो, पर मैं थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ यहाँ पे कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंजेस हो सकते हैं या तो क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंजेस हो सकते हैं. वैसे ये इवेंट कब होगी? तो सेल डिवीजन के वक्त जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज के वक्त, तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्रोमोसोम जो है वो दूसरे सेल की तरफ चला गया, दूसरे न्यूक्लियस में चला गया, तो वहां पे वो क्रोमोसोम क्या रह गया? मिसिंग रह गया. तो मिसिंग क्रोमोसोम की वजह से कई सारी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं. ओके, और वो एबनॉर्मेलिटीज कई बार बर्थ से पहले पता चल जाती है, कई बार बर्थ के बाद भी पता चलती है. ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में चेंजेस कैसे हो सकते हैं? देयर कैन बी एडिशन, देयर कैन बी सम
एडिशन ऑफ अ पार्ट, मतलब कोई एक एडिशनल सेगमेंट जुड़ गया है क्रोमोसोम में, राइट. देयर कैन बी डिलीशन, देयर कैन बी ट्रांसलोकेशन, मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो दो नियर बाय क्रोमोसोम्स में थोड़े सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए हैं. ऐसा रैंडम ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो मॉर्फोलॉजी में होते हैं, राइट. क्रोमोसोम का आर्म ऐड हो जाना, क्रोमोसोम के आर्म में से छोटा सा पार्ट डिलीट हो जाना, शिफ्ट हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, ये सबको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन क्रोमोसोम्स. दो दिस इज रेयर, राइट. हर एक इंडिविजुअल में ऐसे चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता, बट this is cell division and you cannot completely say that cell division is definitely going to occur proper. Sometimes ऐसा हो जाता है कि जेनेटिक में प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो completely सेपरेट नहीं होते, सेग्रीगेट नहीं होते, तो इन सब केसेस में ऐसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं. न्यूमेरिक म्यूटेशंस मतलब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. न्यूमेरिक म्यूटेशन इज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. ये दो तरह का हो सकता है, जिसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी. ओके, even if you are able to less understand it right now, you are going to study all these things in genetics in detail. यहाँ पे तो सिर्फ मुझे म्यूटेशंस कैसे हो सकते हैं वो बताना है, so we are continuing this thing. एन्यूप्लॉइडी जो है उसमें क्या होता है? एडिशन और डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम. एडिशन और डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, एक क्रोमोसोम का ऐड हो जाना या एक पेयर में से एक क्रोमोसोम का डिलीट हो जाना, राइट. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हम क्या बोलते हैं कि पेयर्स में होते हैं, राइट. डिप्लॉइड सेल के अंदर या तो एक थर्ड क्रोमोसोम कहीं से ऐड हो गया या तो फिर कोई क्रोमोसोम उसमें से डिलीट हो गया. तो एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम विल चेंज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. क्योंकि दो क्रोमोसोम्स ऑलरेडी पेयर में है और एक ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्राइसोमी. तो एडिशन ऑफ द क्रोमोसोम और डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन एज व्हाट? एन्यूप्लॉइडी. ठीक है, तो इसमें कई सारे सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम है, ऐसे सारे डिसीजेस जो होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं, क्रोमोसोम के एडिशन और डिलीशन की वजह से. यूप्लॉइडी इज एडिशन और डिलीशन ऑफ अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. सेट ऑफ क्रोमोसोम, आप समझिए, सेट मतलब पूरा ही 23 पेयर्स हैं, उसमें से 23 क्रोमोसोम्स रिमूव हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड, राइट. 2 क्रोमोसोम के सेट होंगे तो हम कहेंगे डिप्लॉइड. पूरा एक सेट ऐड हो गया तो हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड. 4 हो गए तो टेट्राप्लॉइड. तो प्लॉइडी मतलब क्या? हियर द होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज एडेड और डिलीटेड. होल सेट मतलब आप समझिए पूरा ही एक डिप्लॉइड सेल में 2 सेट होते हैं, वैसे पूरे सेट की बात कर रहे हैं. जब ऐड और डिलीट हो जाता है तो यूप्लॉइडी की कंडीशन आती है, और ये प्लांट्स में बहुत कॉमन है, जैसे कि बनाना जैसे प्लांट्स, पाइनएप्पल जैसे प्लांट्स, इनमें यूप्लॉइडी होती है. तो ये हमने म्यूटेशंस की बात की. इसके अलावा जीन म्यूटेशंस जो होते हैं, दीज म्यूटेशंस आर ड्यू टू चेंजेस इन अ जीन सीक्वेंस और इवन यू कैन से चेंजेस इन अ न्यूक्लियोटाइड. एक न्यूक्लियोटाइड का ऐड हो जाना, एक न्यूक्लियोटाइड का डिलीट हो जाना, राइट. एक न्यूक्लियोटाइड है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, बट अगर एक न्यूक्लियोटाइड में भी अगर चेंज आ गया तो दैट विल बी चेंजिंग योर होल सीक्वेंस ऑफ द जीन. ऐसे वेरिएशंस को जेनेटिक म्यूटेशंस या जीन म्यूटेशंस कहा जाता है. तो ऐसे कोई केसेस होने पर there is a possibility that what will happen? Mutation will happen, and this mutation is the first reason for variation to occur. हमें जो वेरिएशंस है वो म्यूटेशंस की वजह से नहीं है, राइट. वो ग्रेजुअल चेंज है, पर ऐसा हो सकता है that in some of the organisms these mutations are happening. प्लांट्स में बहुत ही कॉमन होते हैं ऐसे म्यूटेशंस, ओके. और ह्यूमंस में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, राइट. तो ऐसे म्यूटेशंस जो है, जैसे कि किसी में एक्स्ट्रा एडिशनल फिंगर है,
तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट हैज हैपेंड, बट इट इज नॉट हार्मफुल म्यूटेशन। कई में ऐसा होता है हार्मफुल म्यूटेशंस भी हो जाते हैं, कोई पर्टिकुलर डिसीज या सिंड्रोम भी डेवलप कर लेते हैं ड्यू टू दैट म्यूटेशन। तो ये तो हो गई एक रीजन दैट इज म्यूटेशन। दूसरा रीजन है म्यूटेशन, तो ये तो हो गई एक रीजन दैट इज म्यूटेशन। दूसरा रीजन है दैट इज रिकॉम्बिनेशन। दूसरा रीजन फॉर वेरिएशन टू अकर, वेरिएशंस और क्यों हो सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन काफी इजी है, कब होता है? ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है, गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स बनने से पहले कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट? हमने पढ़ा है लेप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, सारे स्टेजेस होते हैं। तो जाइगोटीन में पैर होने के बाद पैकेटीन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो एक्सचेंज है दैट गिव्स राइज टू न्यू कॉम्बिनेशंस दैट आर गोइंग टू हैपन in the next generation, and that is what? Recombination. So recombination is one more reason for these variations to occur. The third reason for the variations is hybridization. It is hybridization. Okay, so when two species, when they breed and they give rise to a हाइब्रिड, तो नया जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है इट विल हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द स्पीसीज। इस केस में हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। दो स्पीसीज की ब्रीडिंग से, फर्टिलाइजेशन से क्या हो रहा है? एक नया ही स्पीसीज मिल रहा है, अ नया ब्रीड मिल रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? अ हाइब्रिड। सो हाइब्रिडाइजेशन इज वन मोर रीजन फॉर व्हाट? फॉर द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एंड द लास्ट रीजन फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज व्हाट? इट इज लॉस ऑफ सम जीन्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, एंड दैट इज व्हाट? एक्सीडेंटली और रैंडमली। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक ये चीज पढ़ी हुई होगी, राइट? कि एक बॉक्स जैसा ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसमें कई 3 ऐसे बीटल्स ड्रॉ किए हैं जो रेड कलर के और बाकी के बीटल्स ग्रीन कलर के। अ मैन एक्सीडेंटली कीप्स हिज लेग ऑन दोज 3 रेड बीटल्स एंड देन ही वॉक्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो वो जो 3 रेड बीटल्स हैं वो कहीं और जाकर, मतलब दे आर मिसप्लेस्ड एट सम अदर प्लेस, और अब उस पॉपुलेशन में सिर्फ कौन सी बीटल्स है? ग्रीन बीटल्स है। तो ये क्या बताता है कि वो जो एक पॉपुलेशन थी उसमें तो जीन्स दोनों थे, रेड भी थे और ग्रीन भी थे, बट रेड वाले जो है दे आर रैंडमली प्लेस्ड समवेयर एल्स। सो नाउ द पॉपुलेशन हैज लॉस्ट दोज रेड बीटल्स, have lost the genes of that red beetles. So such a condition is called genetic drift. जब accidentally थोड़े genes loss हो जाते हैं in a small population, remember in only a small population, right? Humans की इतनी 132 करोड़ population है, उसमें से 5 चले जाएंगे तो हम उसे genetic drift नहीं कहते। जेनेटिक ड्रिफ्ट सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन के लिए ही पॉसिबल होता है। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज Sewall-Wright effect. It was named after the researcher who has given it, Sewall-Wright effect, SE. Sewall-Wright effect is also another name for genetic drift, जिसमें क्या हम बोल रहे हैं कि थोड़े जो जीन्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, they are lost at some other place and now the population has less number of genes or they do not have that similar number of genes. उसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये भी रीजन है फॉर जीन वेरिएबिलिटी। जीन वेरिएबिलिटी के लिए 4 रीजंस हो गए: म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन की बात हमने ऑलरेडी पहले भी की है, राइट? नेचुरल सिलेक्शन इज व्हाट? Nature selects the organisms
nature is going to select the organisms in the environment. Which organisms? Which are better adapted. मतलब ये पॉइंट जो है वो डार्विन ने जो समझाया था वही है. डार्विन ने ऑलरेडी नेचर सिलेक्शन बता ही दिया था that nature will be selecting only those organisms which are well adapted to that environment. And secondly, those which reproduce in that environment. मतलब सिर्फ सर्वाइव होना, अडेप्ट होना एसेंशियल नहीं है, उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, that they should even be able to reproduce in that environment. So those who reproduce, those who better adapt will be selected by nature, and that is known as natural selection. So these two things, genetic variability and natural selection, are the two major postulates that have been explained for what? Synthetic theory of evolution, and it has been considered to be the most appropriate theory.